ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 5994 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ। ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ पूरे चांस ने आउंदा ही आउंदा, चांस कि ने आउंदा ही आउंदा। ठीक है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਤੋਂ 2 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ इससे मिलणगे। गल करी जावे अपने धातां ਜਾਂ ਅਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ 60 MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ MCQ ਨੇ। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 60 MCQ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਟੌਪਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 60 MCQ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ 60 ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥਰੂ MCQ ਦੇ। ठीक है जी, समझ चल गई है मेरी गल। एंड वीडियो ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਚਮਕੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ, ਲੋਹਾ, ਚਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਧਾਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਐਂਡ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਪਿਓਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਾਤਵੀ ਚਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਟੀਨਯੋਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਚੀਨਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਤਵੀ ਚਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਧਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋ, ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ? AU। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 79। ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੋਨਾ। ਐਂਡ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਚੀਨਯੋਗਤਾ ਧਾਤ ਖਿਚੀਨਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਚੀਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਚੀਨਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਐਂਡ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਚੀਨਯੋਗਤਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਤਾਪ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ? ਤਾਪ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਪ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਕ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਚਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਆ? ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲਣ ਅੰਕ ਹੈ ਨਾ,
ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਅੰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਬਟ ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਚਾਲਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੈਡ PB ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਰਕਰੀ HG ਪਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਲੈਡ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ठोस अवस्था विच नहीं मिलती, तो किहड़ी धात है? सोडियम है, गैलियम है, पारा या फिर फ्रांसियम है। तो वह हैगी है जी पारा। पारा एक अजिही धात है जो रूम टैंपरेचर ते पिघल जाती है। ठीक है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म दे विच मिलदी। देखो बाकी सारियां ठोस ने एंड पारा की है? लिक्विड है। ठीक है जी, इसनूं की कहंदे ने? मरकरी कहंदे ने इंग्लिश दे विच मरकरी। एंड आपां इस दे सिंबल की गल करिए HG है एंड इसका एटॉमिक नंबर हैगा 80। ये भी तुसी ध्यान दे विच रख लिया जी। अगला देखो जी प्रश्न नंबर 6, हेठ लिखियां विचों किहड़ी धात द्रव है? हुण देखो आपां गल कीती सी, आपां की गल कीती सी कि सारियां मतलब की ने धातां की ने? ठोस ने, है ना। पर किहड़ी है? पारा की है सानू रूम टैंपरेचर ते की मिलदियां ने? ठोस ते नहीं मिलदी। हुण उन्होंने पूछा कि किहड़ी जिहड़ी धात है वो द्रव है। धात किहड़ी द्रव है? ब्रोमीन। ब्रोमीन की है? द्रव है। बाकी सारियां ठोस होणगियां या फिर गैस होणगियां। ब्रोमीन की है कली? ब्रोमीन की है द्रव है। क्लीयर होगी जी गल? मतलब समझ लग गया तुहानूं? इत्थे ब्रोमीन की है? ये कली द्रव है, बाकी सारियां गैस या ठोस रूप दे विच सानूं मिलणगियां। कौन? धातां। ठीक है जी, धातां दी गल नहीं हो रही। अगे देखो प्रश्न नंबर 7, धातां दा पिघलन अंक की हुंदा है? धातां नूं मतलब कि जे आपां धातां नूं पिघलाउणा गा, पिघलन अंक की गल कीती गई है, मैल्टिंग पॉइंट की गल कर रहा। हुण मान लो कोई धात है, सपोज करो आपां इहनूं पिघलाउणा चाहुंदे आ, तां आपां नूं इहदा टैंपरेचर की करना पऊगा? वधाउणा पऊगा ना धात नूं। आपां नूं जे पिघलाउणा चाहुंदे आ तां इन्हां दा मैल्टिंग पॉइंट की होऊगा? फिर उच्च होऊगा ना, वध, जिसनूं आपां वध कह दिंदे आ, उच्च। तां इत्थे ऑप्शन नंबर किहड़ी सही आ गई साडे कोले? ऑप्शन नंबर ए सही होगी। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 8, सब तो घट पिघलन अंक वालियां धातां किहड़ियां ने? मतलब की गल कीती जा रही है कि सब तो घट पिघलन अंक वालियां किहड़ियां धातां नेगियां साडे कोले? सब तो घट पिघलन अंक आ जिन्हां दा, ठीक है जी, वो हैगियां ने जी गैलियम अते सीजियम। किहड़ियां ने? गैलियम अते सीजियम। मतलब उपरोक्त ए अते बी। ये बॉडी टैंपरेचर मतलब कि बॉडी टैंपरेचर ते बॉडी टैंप देखो एक तो आप पारा कीती सी पहला, है ना, पारा की सी रूम टैंपरेचर ते। हुण इन्हां नूं की आ, इन्हां नूं पिघलण दे लई रूम टैंपरेचर नहीं, रूम टैंपरेचर तो थोड़ा जिहा वध, जिद्दां कि मान लो अपनी बॉडी दा जिहड़ा टैंपरेचर है रूम टैंपरेचर तो वध हुंदा। अगर आपां इस नूं हत्थ ते रख लांगे ना, अगर आपां इस नूं हत्थ ते रख लांगे तां इह की हो जाणगियां? पिघल जाणगियां। समझ लग गई गल? देखो बाकी धातां नूं आपां नूं पिघलाउण दे लई ताप देना पैंदा है, पर पारा जिहड़ा हैगा सी मरकरी सी, वो रूम टैंपरेचर ते पिघल रहा सी। ठीक है, पर हुण जिहड़ियां साडीआं गैलियम अते सीजियम ने, ठीक है, गैलियम अते सीजियम ने किहड़े उते बॉडी टैंपरेचर ते पिघल रहीआं ने, मतलब रूम टैंपरेचर तो थोड़ा जिहा ज़्यादा। क्लीयर होगी जी? प्रश्न नंबर 9 देखो, किहड़ी धात चमकीली है? जिद्दां कि आपां गल कीती सी कि धातां चमकीलियां हुंदियां ने, ठीक है, पर हुण आपां नूं पुछिया जा रहा भी धातां चमकीलियां नहीं हुंदियां, पर एक धात इह जी है, एक नॉन मैटर इह जिहा है जो की है चमकीला है। ठीक है, जो चमकदा, किहड़ा हो? आयोडीन। किहड़ा मतलब कि अजिहा धात है? आयोडीन अजिही धात है, नॉन मैटल है जो की है चमकदा।
क्लीयर हो गया जी। प्रश्न नंबर 10 देखो, कार्बन की सब तो कठोर प्राकृतिक वस्तु केड़ी है। देखो ये सारे कार्बन के रूप ने, ग्रेफाइट, ग्राफीन, हीरा, फुलरिन, ये सारे रूप ने किसके, कार्बन के। एंड इन्होंने सब चों आप सारे कार्बन के रूप ने, ठीक है। इन्हों चों पूछा गया कि केड़ा सब तो कठोर है, तो सब तो कठोर केड़ा, सानू सब नू पता है हीरा। सब तो कठोर केड़ा जी, हीरा, जिसनों आप दुनिया का सब तो कठोर कह दें। ये सारे अधात है, ठीक है। कार्बन की है, एक अधात है, ध्यान रखना है। आप गल की है गैसां की ने, अधातां हुंदियां ने। तो हीरा की है, हीरा की है, सब तो कठोर है कार्बन का रूप। गल करी जाए ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट देखो, ग्रेफाइट एक अधात है। अधातां बिजली दियां कुचालक हुंदियां ने, अधातां बिजली दियां की हुंदियां ने, कुचालक हुंदियां ने। पर एक अधात यह जिहा, एक नॉन मैटल यह जिहा है, मतलब कि अधात यहो जी है जो बिजली की चालक है, सुचालक है। किहड़ी, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की है, बिजली की सुचालक। इसनों भी पॉइंट नूं तुसीं नोट कर लेना, जिद्दां कि तुहानूं मैं पहलां ही दस्सिया सी कि आपां बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करांगे, सिर्फ 60 नहीं, 60 तो बहुत ज़्यादा आपां क्वेश्चन नाल दी नाल करदे जावांगे। देखो तुहानूं मैं हर क्वेश्चन दे नाल कोई ना कोई होर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर भी दे रही हूँ, ठीक है जी। समझ लग गई गल। देखो कार्बन की कठोर प्राकृतिक हीरा सी एंड ग्रेफाइट, बाकी सारियां अधातां की हुंदियां ने, बिजली दा की ने, कुचालक ने। पर कली ग्रेफाइट की है, ग्रेफाइट की सी, सुचालक है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो जी, प्रश्न नंबर 11, किस धात नूं चाकू नाल कट्टिया जा सकता है। असीं तां सुनिया सी कि धातां कठोर हुंदियां ने, आपां तां इह गल सुन के आए कि धातां कठोर ने, उन्हां नूं कुट के भावें कुछ मर्जी कर लईए। पर नहीं, कुछ धातां ने जिन्हां नूं चाकू नाल भी कट्टिया जा सकता है। किहड़ियां किहड़ियां धातां ने जी, वो लीथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, या फिर सारे। तां किहड़ियां धातां ने, कल्लियां देखो यही ने, लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, जिन्हां नूं आपां चाकू नाल कट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इत्थे सही है। पर ठीक है जी, बाकी सारियां की हुंदियां ने, कठोर हुंदियां ने। इन्हां दा कहंदे जिहड़ा पिघलण मतलब घनत्व है ना, इन्हां दा घनत्व पानी तो भी घट है। मतलब की है कि अगर आपां इन्हां नूं पानी दे विच पा दईए धातां नूं, तां इह पानी दे उपर तैरन लग जाणगीਆਂ। क्यों, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा आयतन है वो की है, पानी तो घट है। समझ लग गई जी गल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12, सब तो उच्चा पिघलन अंक किस धात का है। सब तो उच्चा पिघलन अंक की गल की जा रही है। मतलब की है कि एक धात है, ठीक है, इसनूं आपां पिघलाउणा चाहुंदे आ। इसनूं पिघलाउण दे लई आपां नूं की करना पऊगा, हीट देनी पऊगी, ठीक है। हुण ओह पुछदे ने भी किहड़ी धात नूं सब तो वध हीट की लोड़ पैंदी है पिघलण दे लई। तां सब तो वध उच्चा पिघलन अंक किहदा है, टंगस्टन दा। उच्चा पिघलन अंक किहदा हैगा, हाईएस्ट मैल्टिंग पॉइंट की गल की जा रही है। तुहानूं इंग्लिश च भी दस दवां, हाईएस्ट मैल्टिंग, ठीक है जी, पॉइंट, हाईएस्ट मैल्टिंग पॉइंट की गल की जा रही है। तो टंगस्टन है, की है जी 3380 डिग्री सैल्सियस, 3380 डिग्री सैल्सियस है इसका पिघलन अंक। पिघलन अंक कितना इसका, 3380 डिग्री सैल्सियस, 3380 डिग्री सैल्सियस मैल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है जी। अगे देखो जी, प्रश्न नंबर 13, हवा की मौजूदगी विच, हवा की मौजूदगी विच काफर नहीं, कापर, कॉपर की गल की जा रही है, तांबे की, ठीक है। इत्थे मिसप्रिंट है। नू गर्म करन ते आहे ऑक्सीजन नाल मिल के काले रंग का किहड़ा पदार्थ बनाउंदा है। मतलब की कहा जा रहा है कि जदों हवा की मौजूदगी हुंदी है, आपां हवा की मौजूदगी दे विच मतलब कि एयर विच अगर आपां कॉपर नू गर्म करदे आ, ठीक है, कॉपर नू गर्म करदे आ तां इह रिएक्शन करदा है किहदे नाल, कॉपर नू प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन। जदों आपां कॉपर नू हीट दिन्ने आ, ठीक है, हीट दिन्ने आ एयर की मौजूदगी दे विच, तां इह किरिया किहदे नाल करदा है, ऑक्सीजन नाल इह किरिया करदा है। फिर इह की बनाउंदा है, की बनाउंदा है, काले रंग का एक पदार्थ बनाउंदा। उस पदार्थ नूं कहंदे ने क्यूपरिक ऑक्साइड, COU, क्यूपरिक ऑक्साइड। जिहड़ा ठंडा कॉपर हुंदा ना, ठंडे पानी नाल ओह किरिया नहीं करदा, ठीक है जी। मतलब की है कि जदों आपां गल की कीती कि जदों मतलब जिहड़ा ठंडा कॉपर हुंदा, ठंडे पानी नहीं, ठंडा कॉपर हुंदा, गर्म कॉपर जिहड़ा ना, गर्म जदों आपां नूं गर्म करदा उदों किरिया करदा, ठंडा किरिया नहीं करदा। ये गल ध्यान रखनी है तुसीं, ठीक है जी। ठंडा कॉपर किरिया नहीं करदा, की बनाउंदा है, क्यूपरिक ऑक्साइड बनाउंदा। क्लीयर हो गई जी गल। अगे चलिए, अगला प्रश्न देखो जी। अगे है जी प्रश्न नंबर 14, ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ, मतलब की गल है कि धातां दे ਜਿਹੜੇ धातां जदों
ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ। मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ मतलब ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਖਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ मतलब ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਾਂ ਅਮਲ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਐਸਿਡ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ मतलब ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ? ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਅਮਲ ਤੇ ਖਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਰੋਸਿਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। मतलब ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ मतलब ਕਿ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ मतलब ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਲ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। मतलब ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16। ਸਧਾਰਨ ਤਾਪ ਤੇ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਲੈਡ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ मतलब ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਕ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕਿਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। मतलब ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਲੈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਉਹ ਪਰਤ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕਾਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲ ਖਾਰਵਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੜੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ मतलब ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਉਹ ਪਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਤ ਤੇ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਤ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਲੱਗ ਗਈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਕੀ ਹੈ? ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼
अधिक ताप ते भी ऑक्सीजन नाल क्रिया नहीं करते। मतलब की है कि जिन्ना मर्जी ताप देई जाओ, ठीक है, जिन्ना मर्जी टैंपरेचर वधाई जाओ, दो अजिहे आपां नूं गल कीती गई है अजिहियां धातां दी कि वो ऑक्सीजन नाल क्रिया ही नहीं करनगियां। तां गल करिए लोहा ते कॉपर दी भी, ये तां कर जांदियां ने। कॉपर नूं तां खुला छड्ड दईए तां भी क्रिया हो जाती है तो है ना, इन्हां दोवां दी। तां एलूमीनीयम अते सोडियम आपां हुणी पढ़ के हटे आ। सोडियम अते पोटाशियम तो सानू पता है, एलूमीनीयम आपां हुणी पढ़िया है ना। तो गल करिए सोडियम अते पोटाशियम की तो सानू पता है कि बहुत रिएक्टिव होंदियां ने, ये तो ठंडे पानी नाल भी क्रिया कर जांदे ने। तो इन्हां तां कैरोसीन च रखना पैंदा। तो रह गईयां किहड़ियां? सोना अते चांदी। सोना अते चांदी जिन्ना मर्जी ताप होवे ऑक्सीजन नाल क्रिया नहीं करते। तो इत्थे ऑप्शन डी बिल्कुल की है, राइट है। अगला प्रश्न देखो, एलूमीनीयम ते मोटी ऑक्साइड की परत बनाउण दी प्रक्रिया नूं देखो। एक तो एलूमीनीयम की क्रिया ऑक्सीकरण होया सी तो एलूमीनीयम ऑक्साइड बन गया सी। आपां गल करी सी कि एक बार परत बनेगी, बट इत्थे हुण मोटी परत बनाउण दी प्रक्रिया पूछी है कि जिहड़ी मोटी परत वो बनाई जाएगी, ठीक है, चढ़ाई जाएगी, वो परत खुद बनाई जाएगी, बनेगी नहीं। तो इसनूं कहंदे ने एनोडीकरण। की कहंदे ने? एलूमीनीयम ते मोटी ऑक्साइड दी जिहड़ी परत बनाई जाती है उसनूं कहा जाता है एनोडीकरण, ठीक है। ये परत जिहड़ी है एक बार तो देखो ऑक्सीजन दे नाल क्रिया होके एलूमीनीयम ऑक्साइड की परत चढ़ गई, उस तो बाद जिहड़ी मोटी है इसनूं चढ़ाउणा, मतलब कि चढ़ानी पएगी, ये बनाउणी पएगी, इसनूं आपां कहांगे एनोडीकरण करके परत जिहड़ी मोटी होवेगी। अगला प्रश्न देखो जी, धातां पानी नाल क्रिया करके धात ऑक्साइड बनाउंदियां हन। बिल्कुल सही है जी, धातां पानी नाल क्रिया करके धात ऑक्साइड बनाउंदियां हन अते डैश गैस उत्पन्न करदियां हन। मतलब की है कि जिहड़ियां मैटल ने वो अगर वाटर नाल क्रिया करदियां ने, अगर मैटल वाटर नाल क्रिया करदियां ने तो की बनाउंदियां ने? धात ऑक्साइड, मतलब कि मैटल ऑक्साइड बनाउंदियां ने। क्लीयर होगी गल। एंड ये किहड़ी गैस छड्डदियां ने? छड्डदियां ने H2 हाइड्रोजन। तो इत्थे की आजू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जेकर यह मैटल जिहड़ा ऑक्साइड बनया पानी विच घुलनशील है, जेकर यह मैटल ऑक्साइड पानी विच घुलनशील है तो बनेगा हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब की है कि देखो अगर तो मैटल ने पानी नाल क्रिया कर ली, ठीक है, पानी नाल क्रिया करके मतलब की बना लिया? मैटल ऑक्साइड बना लिया। जेड़ा मैटल ऑक्साइड बनया एंड H2 गैस भी बाहर कढ़ती, हाइड्रोजन, जेड़ा मैटल ऑक्साइड बनया अगर ये पानी विच घुल जाता है, पानी विच घुल जाता तो इसनूं कहांगे मैटल हाइड्रो ऑक्साइड, मैटल हाइड्रो ऑक्साइड। उसनूं मैटल ऑक्साइड नहीं कहांगे, मैटल हाइड्रो ऑक्साइड कहांगे। क्यों? क्योंकि वो पानी विच घुल गया। तो इत्थे राइट ऑप्शन की सी डी, क्योंकि अगर धात मतलब कि पानी नाल क्रिया करके धात ऑक्साइड बनाउंदे ने तो H2 जणी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करदियां ने। प्रश्न नंबर 20 देखो, किहड़ियां धातां ठंडे पानी नाल क्रिया करदियां ने? मैं तुहानूं पहलां, ठीक है जी, देखो Na एंड K किहदे सिंबल ने? सोडियम अते पोटाशियम दे। कैल्शियम मैगनीशियम, ठीक है जी, ये सिंबल हैगे ने एलूमीनीयम एंड अपने आयरन दे। जिंक एंड मैगनीशियम तो ठंडे पानी नाल भी रिएक्शन कर जांदियां ने, वो हैगे ने सोडियम अते पोटाशियम, जिन्हां नूं आपां की रखदे हां कैरोसीन दे ऑयल दे विच रखिया जांदा जिन्हां नूं, ठीक है जी। ये की करदियां ने? इन्हां नूं अग लग जांदी आ जदों क्रिया करदियां ने ना। मतलब की है ये ठंडे पानी नाल क्रिया करदियां ने, ठीक है। हुण देखो जिवें आपां लै लईए सोडियम नूं, अगर आपां इहदी पानी नाल क्रिया कराती तो यह की बन जाएगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, ठीक है। हीट इन्नी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, हीट जिहड़ी निकलेगी वो इन्नी ज़्यादा होएगी कि वो हाइड्रोजन नूं खत्म कर देगी। जो हाइड्रोजन खत्म होगी तो की लग जाएगी? अग लग जाएगी। मतलब की है कि इन्नियां ज़्यादा रिएक्टिव होंदे ने, इन्नी हीट दिंदियां ने धातां ठंडे पानी नाल क्रिया इन्नी मतलब करदियां ने, जो इन्नी हीट दिंदियां ने कि हाइड्रोजन जिहड़ी पैदा होंदी है उन्होंने खत्म कर दिंदियां ने, ते की लग जाती है? फायर कैच कर लैंदियां ने, ठीक है जी। एक कैल्शियम की गल करिए, ये भी ठंडे पानी नाल क्रिया करती है पर यह फायर कैच नहीं करती। ये भी मैं तुहानूं कल रिएक्टिविटी सीरीज़ दे विच चंगी तरह समझा चुकी हाँ। प्रश्न नंबर 21 देखो, कैल्शियम के जल नाल क्रिया करन दे संबंध विच की गलत है?
अगर कहते कैल्शियम, ठीक है जी, कैल्शियम पानी नाल किरिया करदा तां की हुंदा, तीव्रता वध हुंदी है, हाइड्रोजन गैस निकलदी है, ताप घट हुंदा है, कैल्शियम तैरदा है। देखो इसकी तीव्रता वध हुंदी है, ये गल गलत है। अगर कैल्शियम पानी नाल किरिया कर रहा तो यह गल सच है कि वो की होएगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलूगी, हीट जिहड़ी है वो घट निकलदी है, इसलिए तो इनू अग नहीं लगदी। एंड कैल्शियम की है, तैरदा, ये भी गल सही है। तो इत्थे ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। प्रश्न नंबर 22 देखो, केड़ी धात ठंडे या गर्म जल नाल किरिया नहीं करती। इन्हां विचों केड़ी धात है जो ठंडे या जल मतलब कि ना ठंडे पानी नाल किरिया करती है, ना ही गर्म पानी नाल किरिया करती है। किरिया किहदे नाल करती है, फिर स्टीम नाल करती है। ये भी तुहानूं कल मैं दस्सिया सी, तुहानूं सब नूं आंसर आउंदा एलूमीनियम, जिंक, आयरन। ऑप्शन नंबर डी सारे सही है, तो इसदा मतलब इत्थे ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 23 देखो, लैड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर। लैड की गल कीती है, सिल्वर की गल कीती है, कॉपर एंड सिल्वर की गल कीती है, अते डैश जल नाल किरिया नहीं करते। किस जल नाल किरिया करते ही नहीं, ना गर्म ना ठंडे ना स्टीम, किसी नाल किरिया नहीं करते। तो कौन सी, निकल सी, जिंक सी या टिन सी। तो इन्हां विचों हैगा जी सोना, ठीक है। सोना नीचे वाले 4 आपां देखे सी कि यह किसी नाल किरिया नहीं करते, तो इत्थे डी ऑप्शन राइट है, सोना। रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है ना तो सारा कुछ तुहाडे ध्यान च होगा। अगला प्रश्न देखो, अगर कहते मैटल नूं मैटल एंड डिल्यूट एसिड मतलब कि पतला घोल, मैटल प्लस पतला घोल रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न होंदी है। तो कहते की है जिहड़ा की बनूगा। हुण देखो आपां ये गल करके हटे हाँ, मैटल की गल करिए आपां सोडियम लै लिया, ठीक है जी। डिल्यूट एसिड चलो आपां HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लै लिया, तो ये की बन जाएगा NaCl ते हाइड्रोजन गैस निकली। NaCl की हुंदा, एक लूण आ ना, ये नमक आ ना। तो यदा मतलब की है कि जो ये दोनों किरिया करनगे, जो मैटल ते डिल्यूट एसिड कोई किरिया करनगे तो ये की बनेगा, लूण बनेगा, ठीक है जी। देखो तुहानूं ये गल मैं स्टार्टिंग दे विच ही दसी सी कि अगर मैटल, ठीक है, मतलब कि अमल नाल किरिया करदा है तो बेस बन, ठीक है जी, अपने आप को बेस समझदा। जो बेस ते मतलब बेस एंड एसिड दोवें किरिया कर रहे होंदे ने तो की बनदा, नमक अते H2। चलो जी अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25, हेठ लिखियां विचों सब तो उत्तम ऑक्सीकारक किहड़ा है। ऑक्सीकारक की गल करिए तो इसनूं कहंदे ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किहड़ा हुंदा है, जिवें कि तुसीं LIC एजेंट सुने ने। LIC एजेंट का की काम हुंदा, ये दूसरियां दियां पॉलिसीज़ मतलब कि ठीक है बीमा पॉलिसीज़ करते हैं, है ना, इंश्योरेंस करते हैं, ये अपना कुछ करते हैं, नो, यही काम हुंदा है ऑक्सीकारक का। वो दूसरियां नूं बचा लैंदा, खुद खत्म हो जाता। मतलब इन्हां विचों सब तो उत्तम ऑक्सीकारक किहड़ा गा, नाइट्रिक एसिड है। किहड़ा गा सब तो उत्तम मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किहड़ा गा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26 देखो जी, जदों धात डैश नाल किरिया करती है तो हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं होंदी। मतलब की कह रहे हैं, देखो धात दे ना कई बार उत्ते बिंदी लगी हुई है, इस मतलब ये कह लो टाइपिंग च गलती होगी, है ना, इसनूं सीरीयस ना लियो। तो वीडियो अगर चंगी लगी होवे तो देखो अज तुसी वीडियो नूं घट्टो घट्ट 3 लोगों तक शेयर जरूर करना, अपने 3 फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना प्लीज़, अगर तुहानूं वीडियो चंगी लगी। तो जदों कहंदे धात है जिहड़ी वो डैश नाल किरिया करती है तो हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं होंदी। जदों धात नाइट्रिक एसिड दे नाल किरिया करती है, ठीक है, जदों धात नाइट्रिक एसिड दे नाल किरिया करती है तो हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं होंदी, ठीक है जी। मतलब की है कि जदों HNO3 नाइट्रिक एसिड है ये नाल किरिया हो रही है किसी मैटल की, तो की बन के आ रहा, साल्ट बन के आ रहा, ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है, H2O आ रहा, H2 आ रही है, हाइड्रोजन आ रही है। तो ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ बन के आ रहे ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये आपस च मिल के की बना लैणगियां, जल बना लैणगियां। तो यदा मतलब कि जदों धात आ, जदों कोई मैटल नाइट्रिक एसिड नाल किरिया करूगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ मतलब कि हाइड्रोजन गैस आऊगी वो ऑक्सीजन नाल मिल के जल बना लेगी,
ठीक है। एक कादा मतलब मॉलीक्यूल बन जाता जल का, तो जल बन जू, जो जल बन गया तो हाइड्रोजन तो जल दे विच चली गई, तो फिर उहदे विच हाइड्रोजन रही ही नहीं। क्लीयर होगी जी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 27, जो उसनूं तुसीं ना स्टार मार्क करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। किहड़ी धात आ कहंदे जिहड़ी नाइट्रिक अमल दे बहुत पतले होण करके, ठीक है, पतले होण नाल क्रिया करके, मतलब कि जिहड़ा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड किहड़ा सी, HNO3 सी। हुण ये बहुत पतला कहा गया आपां नूं, नाइट्रिक एसिड की है बहुत पतला करन दी गल करी गई है, ठीक है। वो किहड़ी धात आ कहंदे उहदे नाल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करदी है, तां ओह हैगी आ मैगनीशियम जां फिर मैगनीज। मैगनीशियम ਅਤੇ मैगनीज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਲੂਟ ਐਸਿਡ ਦੇ मतलब कि ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ए सही है, इसनूं स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है तुहानूं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखो, किहड़ी धात पतले हाइड्रोक्लोरिक अमल नाल क्रिया नहीं करती। मतलब की है कि डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक नाल किहड़ी धात क्रिया नहीं करती। Mg तो की मतलब हुंदा मैगनीशियम, Al एलूमीनियम, Zn जिंक, Cu कॉपर। तो यदा मतलब कॉपर इत्थे राइट ऑप्शन है। कॉपर जिहड़ी है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल, पतले हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल जिहड़ी कॉपर है ये क्रिया नहीं करती। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 29, 3:1 ਦੇ अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब 3:1 ਦੇ अनुपात ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ HCl, मतलब कि ਜਿਹੜਾ HCl है ਸਾਡਾ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਲੂਟ नहीं हैगा, पतला नहीं हैगा, संघना घोल है। एंड संघने नाइट्रिक एसिड प्लस की है HNO3 है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ है ਤਾਂ ਇਹ मतलब कि ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਐਕਵਾ ਰੇਜੀਆ ਅਮਲ ਰਾਜ। लिख लो पंजाबी च भी अमल राज कहा जाता ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ। अनुपात की होना चाहिए, 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक ਦੇ होने चाहिए ने, ਤੇ 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड का होना चाहिए। एंड ये दोवें घोल मतलब कि पतले नहीं होने चाहिए, संघने होने चाहिए ने। अगर ये दोवें मिक्स हो जाते हैं, जानी जो एक्वा रेजिया बन जाता तो यह सोने और प्लैटिनम नूं भी पिघला सकते हैं, गला सकते हैं, ठीक है जी। इन्नी पावर आ जाती है ये। उंज देखो सोना सानू पता नहीं हुंदा, ये उसनू पिघला सकते हैं, किनू, सोने नू। जदों इन्हां दोनों का मिक्सचर बन जाता एक्वा रेजिया अमल राज बन जाता, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 30 देखो जी, सब तो वध क्रियाशील धात है, मैनू नहीं लगता कि क्वेश्चन च कुछ गल है, सब तो वध हैगी पोटाशियम एंड सोना दिती है, सब तो घट है रिएक्टिविटी सीरीज़ दे विच तुहानूं मैं दस चुकी हाँ। प्रश्न नंबर 31 देखो, क्लोरीन दे बाहरले कोश विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे ने। बाहरला कोश किहड़ा, ये सब तुहानूं समझाया होया। उत्थे गल कीती जा रही है कि क्लोरीन दे बाहरले कोश विच इलैक्ट्रॉन किन्ने हुंदे ने, तां इलैक्ट्रॉन हुंदे ने 7, ठीक है जी। इत्थे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 32 देखो, धातां अते अधातां दे विचकार किहड़ा यौगिक हुंदा है। मतलब की है कि धातां अते अधातां दे विचकार कोई बॉन्ड बनदा, उस बॉन्ड नूं यौगिक नूं की कहंदे ने, उसनूं कहंदे ने आयनिक यौगिक। आइकॉनिक नहीं, आयनिक यौगिक। किहड़ा यौगिक कहंदे ने उसनूं, किहड़ा बॉन्ड कहंदे ने, आयनिक बॉन्ड, ठीक है जी, आयनिक बॉन्ड कहते हैं उसनूं। प्रश्न नंबर 33 देखो, मेरे मूँह चों आइकॉनिक ही निकली जाता, आइकॉनिक काजल है ना। प्रश्न नंबर 33 देखो, इसनूं भी इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज आया होया वैसे क्वेश्चन, ठीक है, किसी पेपर दे विच तां ध्यान च जरूर रखियो। आयनिक यौगिक के संबंध विच की गलत है, ध्यान नाल समझियो हुण तुसीं इहनूं। आयनिक यौगिक की गल की गई है, मतलब कि धातां अते अधातां दे ने मिल के बनाया होया बॉन्ड है, ठीक है, यौगिक है। इहदे विच की गलत है, ठोस अते कठोर हुंदे ने। चलो पहलां आपां गल करिए धातां अते अधातां द्वारा बनाए गए। आपां गल करिए सोडियम अते क्लोरीन दी, ये मिल के की बनाउंदे ने NaCl, मतलब कि नमक, जिहदे विच Na धात है, क्लोरीन की है अधात। तां ये एक यौगिक NaCl एक यौगिक है धातां अते अधातां दा।
ਨਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਬ ਪਾਉਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਅੰਕ ਅਤੇ ਉਬਾਲ ਅੰਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਅੰਕ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਅੰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, परंतु कैरोसिन ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਬਾਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਅੰਕ ਹੈ ਐਂਡ ਪਿਘਲਾਉਣ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਜਲਦੀ ਪਿਘਲੇ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ टाइम लाना, अगर उन्होंने पिघलाना ਤਾਂ भी उन्हें टाइम लाना, है ना। तो हुण देखो की गल है कि जल विच घुलनशील भी हुंदा नमक। बिल्कुल। ठोस अवस्था विच बिजली का सुचालक पर तरल अवस्था विच बिजली का कुचालक। बिल्कुल गलत। ये लाइन की है, ये ऑपोजिट लिखी पई है। जद कि तरल अवस्था विच बिजली का सुचालक हुंदा है, ठीक है जी, एंड मतलब ठोस अवस्था विच कुचालक हुंदा। तो ये ऑप्शन जिहड़ी इहदे संबंध विच गलत है, आयनिक यौगिक के संबंध विच। आयनिक यौगिक समझ लग गया ना। प्रश्न नंबर देखो 34। प्रश्न नंबर 34 की गल करिए। प्रश्न नंबर 34 की है। 34 नंबर प्रश्न देखो, पृथ्वी की पेपड़ी विच कुदरती रूप विच मिलण वाले तत्त जां यौगिक नूं की कहंदे ने। मतलब कि जिहड़ा तत्त पृथ्वी की पेपड़ी विच कुदरती रूप विच मिलदा उसनूं की कहंदे ने? उसनूं आपां खनिज कहंदे आ। खनिज पदार्थ जो कि आपां बचपन तो पढ़दे आ रहे हैं, उसनूं आपां की कहंदे आ? खनिज कहंदे आ। 35वां प्रश्न देखो, हेठ लिखियां विचों सुतंत्र रूप विच नहीं मिलदा। सुतंत्र रूप विच नहीं मिलते मतलब ये कल्ले नहीं मिलते। ना तो सानू पोटाशियम कल्ला मिलता, ना सोडियम मिलता, ना कैल्शियम मिलता, ना मैगनीशियम, ना एलूमीनियम। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म च मिलणगे, हमेशा कंबाइंड फॉर्म विच मिलणगे। बिकॉज क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होंदे ने। ठीक है, रिएक्टिव होंदे ने, किसी ना किते रिएक्शन करते रहंदे ने किसी ना किसी ना। इसलिए इन्हां नूं आपां कल्ले नहीं, सुतंत्र नहीं हुंदे। इन्हां दे नाल कोई ना कोई मतलब कोई किसी ना कंबाइंड कीते हुंदे ने। तो यदा मतलब इत्थे ऑप्शन नंबर F सही है। देखो F तक ऑप्शन चले गए। मैं जान के सारे लिखे ने भी, मैं बाद चो इधर दसूँगी ना। अगर तुसीं क्वेश्चन खुद भी पढ़ो तो ये क्वेश्चन तुहाडे ध्यान दे विच जरूर रहे। प्रश्न नंबर देखो 36। हेठ लिखिया विचों सुतंत्र मिलते हैं। इन्हां विचों सुतंत्र कौन मिलूगा? जो किसी नाल रिएक्शन नहीं करता। तो रिएक्शन इन्हां विचों किहड़ा नहीं करता? गोल्ड नहीं करता। बाकी सारे कर ही जाते हैं। ठीक है, तो यह किहड़ा गोल्ड नहीं करता, एक सिल्वर नहीं करता। तो इत्थे गल आपां नूं AU मतलब दिता होया, गोल्ड दिता होया। तो ऑप्शन नंबर D इत्थे सही है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, धरती तो जिहड़ियां कच्चियां धातां, ठीक है जी, धरती तो जो भी सानू कच्चियां धातां खनिज पदार्थ प्राप्त होंदे ने उन्हां दे विच कहंदे मिट्टी अते रेत जिहियां अशुद्धियां मिलियां हुंदियां हन। बिल्कुल मिलियां हुंदियां ने। इन्हां अशुद्धियां नूं की कहंदे ने? तां इन्हां अशुद्धियां नूं सल्फाइड कहंदे ने, ऑक्साइड कहंदे ने, गैंग कहंदे ने ਜਾਂ फिर गम कहते हैं। तो इन्हां नूं कहंदे ने जी गैंग। ठीक है, इन्हां नूं कहंदे ने गैंग। ऑप्शन नंबर C। आई होप कि तुहानूं वधिया लग रहे ने क्वेश्चन। बिल्कुल भावें अपनी बुक ना तुसीं अपने अगे रख के बैठ जाओ, हर एक टॉपिक हर एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ दे तुहानूं क्वेश्चन मिल रहा है इस दे विच। क्यों? अगर तुसीं रीडिंग करके, ठीक है, अपनी बुक चो रीडिंग करके ये क्वेश्चन दे आंसर्स दे रहे हो, इन्हां क्वेश्चनस नूं देख रहे हो, तो तुहानूं 100% समझ तो आ ही रहे हैं। अगर नहीं भी देख रहे, नहीं भी पढ़ी ना, तो भी तुहानूं 100% समझ आने चाहिए। ये सिर्फ आपां कल्ले MCQ नहीं कर रहे, मैं बार बार कहनी हाँ, आपां पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू MCQ। एंड देखो आपां सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़िया आंसर देता, आपां हर चीज़ नूं डिटेल च कर रहे हैं, हर क्वेश्चन नूं, हर टॉपिक नूं समझण दी ट्राई कर रहे हैं। अगर तुहानूं साइंस औखी लगदी है ना, तो तुहानूं साइंस हुण ईजी लगन लग जू, क्योंकि आपां इन्ने सौखे तरीके नाल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। पेपर तो पहला इन्हां नूं तुसीं जरूर पढ़ के जदों जाओगे तो तुसीं खुद कहोगे कि मैम एज इट इज़ क्वेश्चन सानूं मिले सी। बिल्कुल डिटो सेम तुहानूं यही मिलने ने। अगला प्रश्न, सिनावार किसदी कच्ची धात है? सिनावार की गल की जा रही है, HGS। सिनावार HGS किसदी कच्ची धात है? यह कच्ची धात है जी मरकरी दी। मतलब की है? मरकरी दी कच्ची धात की है? सिनावार। इसनूं सिंदूर भी कहते हैं, ये गल भी ध्यान च रखनी है। इसनूं की कहते हैं? सिनावार कच्ची धात है मरकरी दी। ऑप्शन नंबर B। एंड इसनूं की कहा जाता है? सिंदूर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 देखो जी, किहड़ी धात हवा विच गर्म करन ते उसदी कच्ची धात, किहड़ी कच्ची धात है जिसनूं अगर आपां हवा ते गर्म करिए
ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब कि कोई कच्ची धात है, इसनूं आपां हवा 'च गर्म करिया, हवा 'च ही रखिया तो ये विचों जिहड़ी मेन धात है बाहर निकल के आ जाऊ। तो किहड़ी धात है जिहड़ी इदां हवा 'चों बाहर आ जाती है, वो हैगी है जी मरकरी। मरकरी जिसनूं आपां पारा कहने आ, Hg किहदी है, मरकरी दी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 40। सल्फाइड कच्ची धात नूं जदों सल्फाइड कच्ची धात नूं ज़्यादा हवा की होंद विच उच्चे तापमान ते गर्म करन नाल इह ऑक्साइड विच परिवर्तित हो जाती है। मतलब की है, सल्फाइड है, कच्ची धात है, ज़्यादा हवा की, ज़्यादा तापमान है, जदों ये गर्म हो रही है तो ऑक्साइड बन गई है। इस क्रिया नूं की आखदे ने, इस क्रिया नूं की आखदे ने, इस क्रिया नूं आखदे ने भुन्नना, रोस्टिंग। मतलब कि जदों सल्फाइड कच्ची धात नूं, हुण देखो मैं तुहानूं दसदा, जिद्दां कि आपां गल कर लईए जिंक सल्फेट दी। जिंक सल्फेट नूं, ठीक है जी, आपां हवा की होंद विच रख दिता। ठीक है, हवा की होंद मतलब कि आपां ऑक्सीजन लै ली एंड हीट देती, पूरा हीट देती, तो की बन गई जिंक ऑक्साइड ते SO2। तो ये आ बन के साडे सामने आ गई। तो इहनूं की कहांगे, इहनूं आपां कहांगे भुन्नना, रोस्टिंग। क्यों, ये रोस्ट होगी। ठीक है जी। अगला देखो प्रश्न नंबर 41। कार्बोनेट कच्ची धात नूं, कार्बोनेट की कच्ची धात की गल की गई है। पहला किहदी कच्ची धात सी, सल्फाइड की। हुण कार्बोनेट की कच्ची धात है, इहनूं लिमिटेड हवा की, ठीक है जी, तापमान बहुत वध है, मतलब कि टैंपरेचर हाई है, हवा जिहड़ी वो लिमिटेड है। जदों गर्म करदे आ तां इह ऑक्साइड विच परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया की अखवाउंदी है, जदों तां देखो सल्फाइड सी जिहड़ी, उहनूं तां आपां कह दिंदे सी भुन्नना, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਸਮੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्सीनेशन। अगला प्रश्न देखो जी, प्रश्न नंबर 42। धात ऑक्साइड विचों धात प्राप्त करन लई किस दी वरतों हुंदी है। मतलब की कह रहे ने कि कोई धात ऑक्साइड है, सपोज करो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर आपां गल करिए, चलो जिंक ऑक्साइड दी कर लईए। जिंक ऑक्साइड दे विचों आपां जिंक नूं अलग करना है, तो आपां नूं की करना पएगा, किहदी वरतों होएगी, लैड की वरतों होएगी, कार्बन की होएगी, कैल्शियम की, या फिर सोडियम की। तो वरतों होएगी कार्बन की। इहनूं कार्बन नाल जदों रिएक्शन करवा दांगे, ठीक है, जदों कार्बन नाल रिएक्शन करवा दांगे जिंक ऑक्साइड नूं, तां इहदे विचों जिंक बाहर आ जाएगा। ठीक है। देखो वैसे तो जिंक नहीं रिएक्टिव होंदा, तुसीं सिर्फ एक एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती, इसनूं सीरीयस नहीं, ठीक है, इहनूं ये ना समझण लग जाओ कि आ एग्जाम्पल गलत देती या कुछ भी। ठीक है, तुहानूं एक समझाउण दी खातर। धात तो देखो, अगर धात तो मान लो कोई धात है, उस तो वध किरियाशील नूं भी आपां रख लईए ना, वैसे एग्जाम्पल गलत नहीं सी हो, वध किरियाशील नूं भी आपां रख लईए तां भी उत्थे मतलब आ सकदा, उसनूं आपां प्राप्त कर सकदे हां। सपोज करो आपां प्राप्त करना है, कोई धात प्राप्त करनी है, ठीक है, लैड नूं ही, चलो कोई भी धात प्राप्त करनी है, सपोज करो एक्स ला लो, चलो ठीक है, एक्स नूं आपां किहदे नाल रिएक्टिव करवा दईए, एक्स दे नीचे हैगा जी, एक्स तो उपर हैगा अपने कोले मान लो टी नाल रिएक्ट करवा दांगे, ठीक है, जिहड़ा इस तो वध किरियाशील है, तां भी आपां नूं की हो जाएगी, धात जिहड़ी ओह प्राप्त हो जाएगी। धात ऑक्साइड एक्स सी, किरिया करवाती उस तो उपरली सीरीज वाले नाल, तो उन्हें की आप सानू प्राप्त करती। वैसे कार्बन नाल मतलब मेन आंसर कार्बन है, एंड अगर तुहानू उत्थे आ जाए कि वध तो मतलब कि वध किरियाशील नाल, तो भी आंसर बिल्कुल सही है, तो दोवें इकट्ठे नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 43 देखो, हेठ लिखियां विचों थर्मिट प्रतिक्रिया बारे की सच है। थर्मिट प्रतिक्रिया बारे की सच है। सब तो पहला गल करिए थर्मिट प्रतिक्रिया दी, ठीक है जी। जिवें गल करी जावे जिंक दी, गल करी जावे आयरन दी, गल करी जावे लैड दी, गल करी जावे कॉपर दी, ये सब दे ऑक्साइड तो ये धात मिलती है। ये ऑक्साइड हुंदे ने, इन्हां दे ऑक्साइड जिवें जिंक ऑक्साइड दी आपां गल करी सी, इन्हां दे ऑक्साइड्स दे विचों ये धातां निकलदियां ने, आपां नूं ऑक्साइड प्राप्त हुंदे ने, इन्हां नूं मतलब कि आपां रिएक्शन करवा के रिडक्शन करवा के कार्बन नाल, ठीक है, कार्बन नाल रिडक्शन इन्हां दी करवा के फिर आपां की करदे आ, इन्हां नूं प्राप्त करदे आ, ठीक है, या फिर वध किरियाशील नाल भी करवा के प्राप्त कर लेने। क्लीयर होगी जी। तो हुण देखो अपने कोले हैगा आयरन, ठीक है, आयरन नूं अगर आपां Al2O3 प्लस हीट ये कर दिता, तो हीट नाल पिघलिया होया आयरन सानू मिलेगा। जिहड़ी हीट दित्ती गई है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਰਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਥਰਮਿਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ।
ठीक है। पिघले के जिहड़ी सानू प्राप्त हो रही है ना धात, ਉਹੀ थर्मिट प्रतिक्रिया हैगी। जो हीट दे के कोई धात सानू पिघले रूप च प्राप्त हो रही है, अगर आपां गल करिए तो उसनू थर्मिट प्रतिक्रिया कहते हैं। जिवें यह प्रयोग रेल की पटड़ी, इसका प्रयोग ਅਤੇ मशीन ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ जोड़न ਲਈ ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल सही है जी। क्यों ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ मतलब कि पिघली हुई ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिल रहा आयरन कि ਉਹ मशीन ਦੀ ਦਰਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਨੂੰ जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ ਨਿਕਲਦਾ है, बिल्कुल ताप निकलदा हीट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। इस दे विचों पिघली हुई धात मिलती है, भी गल बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सारे राइट ऑप्शन की आ गई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो जी, प्रश्न नंबर 44, एलूमीनियम ऑक्साइड तो एलूमीनियम किवें प्राप्त किया जाता। देखो आपां गल करी सी जिंक ऑक्साइड दी, आपां गल करी सी आयरन दी, आपां गल करी सी लैड दी, ठीक है। आपां गल करके हटिया कॉपर दी। इन्हां दा आपां नूं कदों कार्बन नाल करवा के सानू इन्हां दे ऑक्साइड नूं आपां जदों रिडक्शन करवा दिंदे सी कार्बन नाल जां फिर वध किरियाशील नाल, तां सानू इह धात मिल जांदी सी। पर हुण गल कर रहे हैं एलूमीनियम ऑक्साइड दी। एलूमीनियम ऑक्साइड तो प्राप्त करना है आपां एलूमीनियम, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ मतलब मोस्ट रिएक्टिव ने ना साडे, जिद्दां कि आपां गल करिए पोटाशियम दी, सोडियम दी, एलूमीनियम दी, ठीक है जी, कैल्शियम दी एंड मैगनीशियम दी, ये सारे बहुत रिएक्टिव ने। ये कार्बन नाल क्रिया नहीं करते, आ कार्बन नूं तां कुछ समझते ही नहीं, मतलब कार्बन नाल नहीं क्रिया कुरिया करते, ठीक है। उहदे नाल नहीं कोई रिडक्शन हुंदी इन्हां दी। ये ऑक्सीजन नूं चंगा जरूर समझते हैं, ऑक्सीजन नूं पसंद करते हैं। मतलब की है कि एलूमीनियम ऑक्साइड तो जो एलूमीनियम प्राप्त करना है तो यदा बिजली अपघटन करवाना पएगा। ऑप्शन नंबर बी इत्थे बिल्कुल सही है। क्लीयर होगी जी गल। अगला देखो प्रश्न नंबर 45, लंबे समय तक नमी नाल भरपूर हवा विच रहन करके, ठीक है जी, लोहे ते भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब कि लेयर बन जाती है लोहे ते ब्राउन कलर की। उस लेयर नूं की कहंदे ने, उस लेयर नूं गैंग कहंदे ने, जंग कहंदे ने, एनोड पंख कहंदे ने, जां कुछ नहीं। तो बिल्कुल जिहड़ी लोहे ते भूरे रंग की जिहड़ी परत चढ़दी है उसनूं आपां जंग लगना कहने। आपां तां ये तां देखिया भी होया आपां सबने, है ना, ये तां आपां रिएक्शन देखिया भी होया। अगला देखो, खुली हवा विच सिल्वर दी वस्तु ते किस दी परत बन जाती है। मतलब गल आ रही है चांदी दी, चांदी नूं खुली हवा च रखता, कादी परत बन जूगी उसते, सिल्वर सल्फाइड दी, ठीक है जी, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जूगी। वैसे तो इन्हां दी रिएक्शन नहीं हुंदी, सिल्वर एंड अपने गल करी सी गोल्ड की नो रिएक्शन है, बट सल्फर की बन जाना, उसे परत कादी बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 47 देखो, हवा विच कॉपर ते किहड़े रंग की परत चढ़ जाती है। मतलब की गल कीती जा रही है जी, हवा विच गल कीती जा रही है कॉपर की, तांबे की। तांबा किहड़े रंग का हो जाता हवा च, हवा च तांबा किहड़े रंग का हो जाता, हरे रंग का। उंज किहड़े कलर का हुंदा, ब्राउन जा हुंदा ना, भूरा जा। ब्राउन तो की बन जाता, हरा बन जाता। कदों कॉपर ते किहड़े रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की, उसनूं की कहा जाता, कॉपर कार्बोनेट। ये हरे रंग की परत नूं कहंदे ने कॉपर कार्बोनेट। जदों कॉपर की है कार्बन डाइऑक्साइड नाल क्रिया कर जाता है, वह बन जाता कॉपर कार्बोनेट। प्रश्न नंबर देखो जी 48, लोहे नूं खोरन तो किवें बचा सकते हैं। खोरन तो बचाउण दी क्रोमियम का लेप लगा के, ठीक है जी, मिश्रत धात बना के, एनोडीकरण नाल, जां फिर उपरोक्त सारे। तो लोहे नूं बचा सकते हैं आपां उपरोक्त सारे नाल खोरन तो, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 49 देखो, लोहे अते इस्पात दीआं वस्तुआं नूं जंग तो बचाउण लई जिस्त दी कादी परत चढ़ाई जाती है। देखो पतली परत चढ़ाई जाती है जिस्त दी। इस विधि नूं की कहंदे ने। हर क्वेश्चन दे विच भी तुहानूं एक क्वेश्चन मिलता है, उसदा आंसर भी नाल मिलता है ना। तो पतली परत चढ़ाई जाती है, इस विधि नूं कहंदे ने गलवैनीकरण। की कहंदे ने, गलवैनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट है। प्रश्न नंबर 50 देखो, लोहा सब तो वध प्रयोग की जाने वाली धात है। लोहा सब तो वध प्रयोग हुंदा है, पर की कहंदे ने कि कदी शुद्ध अवस्था विच वरत्या नहीं जाता। लोहा शुद्ध अवस्था विच वरत्या नहीं जाता, बेशक सब तो वध यूज च आई जाता, क्योंकि शुद्ध लोहा की हुंदा, सख्त हुंदा, नरम हुंदा, पतला जां मोटा। शुद्ध लोहा नरम हुंदा। इत्थे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर शुद्ध लोहे दे विच 0.05% कार्बन पा दित्ती जावे
ਫਿਰ ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਪਾ ਕੇ? ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਫੈਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 52 ਦੇਖੋ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਆਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਮਅੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਅੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਹੈ? ਪਿੱਤਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜਸਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਹੈ? ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜਸਤਾ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 55 ਦੇਖੋ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 56 ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਚ ਪਿਘਲਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਉੱਚ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਯੌਗਿਕ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਕੋਨਿਕ CaO ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਆਇਕੋਨਿਕ ਕਹਤਾ, ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਾਤ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ CaO। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 57, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੇਪ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਟਿਨ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? C ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 58 ਦੇਖੋ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਪ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਪ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਕਹਿਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਪ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 59 ਦੇਖੋ, ਗਰਮ ਜਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਪ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਜਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਚਾਲਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 60, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਘੁਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਾਪਰ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਾਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਘੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ